This conference will now be recorded. Hello student, once again welcome you all. So yesterday I think we are actually struggling with these two examples that I'm going to repeat that once again. Okay, so d square, because of our really complementary function, there might be some uh, difficulty to finding the integral. So now let us see them how actually they are. So if we find the roots of this equation, so what I get here, simply d is equal to -2 comma -1, like this. Okay, and that's why we have actually we have taken +2 +1, that's why. So simply yc is equal to what? C1 e raised to -2x plus C2 e raised to -x. And if we compare this with C1 y1 plus C2 y2, then what I get here? So my y1 is e raised to -2x and y2 is e raised to -x, like this. And if I take the derivative, what I get? The derivative is simply y1 dash is equal to -2 e raised to -2x, and आपका y2 का जो डेरिवेटिव है वो आएगा माइनस e raised to -x, I think. Okay, now what is my w here? So my w is simply y1, y2 and their derivatives, y1 dash, y2 dash. So dash means derivative. Now substitute the value. This is equal to y1 is nothing but e raised to -2x, y2 is e raised to -x, -2 e raised to -2x, and minus e raised to -x. Okay, like this. And now if we cross multiply, what I get? Simply minus e raised to -3x, because yesterday I have told you about that a raised to m into a raised to n, it is a raised to m plus n हो जाएगा, ये laws of indices. तो e raised to -2x और e raised to -x, अगर इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हो तो e raised to -2x into e raised to -x, तो ये हो जाएगा e raised to -2x प्लस e raised to प्लस -x मीन्स -x, तो ये दोनों का एडिशन ऊपर -3 हो जाएगा. ओके, सो माइनस e raised to -3x and माइनस माइनस, तो ये हो जाएगा प्लस, आई थिंक दिस इज प्लस 2 टाइम e raised to -x. Check it. Okay, so it is e raised to -3x plus 2 e raised to -3x, and if we add them, what I get? Tell me. So e raised to -3x we can take outside directly, no problem. Okay, and then -1 plus 2 is nothing but what? What is -1 plus 2? It is +1. Okay, so simply what I get here, my w is plus e raised to -3. Check for it once again. Okay, so see, this is y1 is e raised to -2x that we have taken, y2 is e raised to -x, its derivative is derivative of y1 is -2 e raised to -2x that we have taken, and derivative of y2 is minus e raised to -x. Okay, and then if we solve the determinant, because determinant is nothing but a b c d, take the cross multiplication, so ad minus bc, this is the answer of this. So ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है पहले, e raised to -2x into e raised to minus e raised to -x, और उसके बाद में ये दोनों का प्रोडक्ट लेना है, ये दोनों का प्रोडक्ट लिया मैंने. ओके, तो ये दोनों का प्रोडक्ट लेने के बाद अभी इधर यहाँ पे देखो e raised to -2x into e raised to -x मिल गया e raised to -3x, और यहाँ पे सेम होगा और सिर्फ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोडक्ट ऑलरेडी माइनस मिल जाएगा और दिस माइनस इनका प्रोडक्ट माइनस इनका प्रोडक्ट होता है, तो ऑलरेडी माइनस साइन बाहर है. ओके, तो इसके वजह से वो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, दैट्स इट. ओके, तो अभी हमको क्या करना है, ये तो मिल गया W.
तो v हो जाएगा, देखो yp कंसिडर करना है आपको। सो yp इज इक्वल टू c1 सॉरी uy1 प्लस vy2 e रेस टू माइनस 3x है, ध्यान में रखो, इट इज e रेस टू माइनस 3x। ओके, तो ये u का वैल्यू जो है आपका, जैसे हमने कल के एग्जाम्पल में भी देखा, तो u मिल जाएगा हमको इंटीग्रेशन। सो योर u इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय w dx। तो ये सब का वैल्यू डालना है इधर, y2 का वैल्यू डालना है, y1 का वैल्यू डालना है। ओके, तो अगर मैंने y1 का वैल्यू यहाँ पे डाला तो क्या मिलेगा, माइनस बाहर, y2 आपका है, देखो अभी y2 अच्छे से ध्यान में रखना है, y2 दिस इज माय y2 e raised to minus x, substitute that, so this is e raised to minus x is nothing but what is x, sin e raised to x, this is sin of e raised to x divided by, और w आ जाएगा आपका e raised to minus 3x, माइनस 3x इंटू dx, दैट्स इट। तो अभी क्या करना है, ये e raised to 3x अगर मैंने ऊपर लिया तो उसका पावर प्लस हो जाएगा, माइनस तो बाहर एज इट इज है, अगर ये e raised to 3x में ऊपर लेता हूँ तो ये ऐसा मिल जाएगा, e raised to minus x ऑलरेडी e raised to plus 3x हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास इंडाइसिस के लॉज है, e raised to m अगर होता है वो तो उसका पावर अगर न्यूमरेटर में माइनस हुआ तो ऊपर जाके वो प्लस हो जाता है। ओके, एंड इनटू साइन ऑफ e raised to x इज देयर dx। तो ये हो गया। अभी क्या करना है, तो फिर से वो ऊपर वाला इंडाइसिस का रूल यूज करना है, ए रेस टू एम इंटू ए रेस टू एन क्या हो जाएगा आपका, ए रेस टू एम प्लस एन। तो अगर मैंने ई रेस टू माइनस एक्स और ई रेस टू टू एक्स सॉरी 3x का प्रोडक्ट लिया, तो बेस सेम है, जो पावर है उनका एडिशन होगा, माइनस एक्स प्लस 3x, और माइनस एक्स प्लस 3x इज नथिंग बट 2x। वॉट इट, तो ये माइनस तो एज इट इज है, ई रेस टू 2x मिल जाएगा, इन दोनों का प्रोडक्ट किया मैंने, और साइन ऑफ ई रेस टू एक्स हो जाएगा। तो अगर मुझे सब्स्टिट्यूशन लेना है इरेस टू एक्स के लिए तो उसका डेरिवेटिव भी चाहिए वहां पे, तो मैं इरेस टू टू एक्स को इरेस टू एक्स इंटू इरेस टू एक्स करता हूँ, जैसे मैंने कल बताया, साइन ऑफ इरेस टू एक्स dx। नाउ वी कैन टेक द सब्स्टिट्यूशन। अभी देखो इरेस टू एक्स यहाँ पे है, उसका डेरिवेटिव भी यहाँ पे, ये इरेस टू टू एक्स इसका डेरिवेटिव नहीं है इसलिए मैंने स्प्लिट किया। अगर इरेस टू एक्स इंटू इरेस टू एक्स लेते हो आप तो इरेस टू टू एक्स मिल जाएगा, मैंने कुछ अलग नहीं किया यहाँ पे, खाली मैंने स्प्लिट किया क्योंकि मुझे डेरिवेटिव चाहिए था। Okay, so note this step. Now if we take e raised to x is equal to t, so what I get, its derivative is e raised to x dx is equal to what, dt। okay, तो ये जो पूरा e raised to x dx है इसके जगह पे आपको क्या लेना है, dt लेना है, और ये e raised to x तो t जाएगा, यहाँ पे भी t आएगा, तो फाइनली मुझे मिल गया माइनस t, e raised to x की जगह पे t लिया, और साइन ऑफ e raised to x मीन्स t, इट इज साइन ऑफ t dt। तो ये ऐसा सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। और जैसे कि मैंने कल भी एक्सप्लेन किया था, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, u इंटू वी का रूल जो है वो यहाँ पे यूज करना है, क्योंकि प्रोडक्ट है u इंटू वी डी एक्स, इट इज u v1 वाला रिजल्ट यूज करना है, माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, ये रिजल्ट हमको यहाँ पे यूज करना है, माइनस वन, अल्टरनेटली साइंस आर पॉजिटिव एंड नेगेटिव, where dashes represent derivative and suffixes represent integrations। तो u एंड v क्या लेना है, तो अल्जेब्राइक फंक्शन जो है आपका, ये t इसको u लेना है, इसको v लेना है, ये भी मैंने बताया लाइट रूल से आपको ये लेना है। ओके, और ये रूल कब यूज करना है, जब u आपका होगा अल्जेब्राइक एंड v आपका होगा आइदर एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्री। ओके, तो यहाँ पे देखो v जो है साइन t है वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, और u आपका t है, तो ये क्या है आपका अल्जेब्राइक फंक्शन है। ओके, तो इसके लिए अभी इंटीग्रेशन
इस रूल के हिसाब से हमको लेना है, u का डेरिवेटिव लेते जाना है और v का इंटीग्रेशन लेते जाना है। तो अगर मैं यहाँ पे इसका इंटीग्रेशन लेता हूँ तो it is, yes, it is with the help of light rule. Okay, so LIT, light, L stands for logarithmic, as that before I have explained. तो माइनस तो बाहर रखो, u as it is हो जाएगा इस रूल से। v1 मीन्स v का इंटीग्रेशन लेना है, साइन का इंटीग्रेशन आपका आ जाएगा माइनस कॉस ऑफ t, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस होता है, माइनस u डैश मीन्स t का डेरिवेटिव लेना है आपको, 1 मिलेगा, वो x का डेरिवेटिव 1 होता है। Okay, so integration of sine t is cos t minus cos t, बेसिक रूल है। ओके, और डेरिवेटिव जो है x का वो 1 होता है, तो t का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t क्या आ जाएगा आपका, 1 आ जाएगा, 1। और इसका फिर से इंटीग्रेशन लेना है v1 का, v2 मीन्स व्हाट, योर v2 इज नथिंग बट इंटीग्रेशन ऑफ v1, तो v1 ये आ गया आपका, इसका इंटीग्रेशन तो माइनस एज इट इज होगा, और cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन होता है, 1 का इंटीग्रेशन आगे, 1 का डेरिवेटिव आगे जाके u डबल डैश 0 हो जाएगा, ये u है आपका, ये u डैश है, और 1 का डेरिवेटिव आगे जाके 0 हो जाएगा, तो इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगी, isn't it? तो ये पूरा ऐसा सिंपल मिल जाएगा, दिस इज नॉट x, दिस इज t। तो मुझे फाइनली मिल गया माइनस एज इट इज इन ब्रैकेट t, सो माइनस लेता हूं मैं, माइनस t इंटू माइनस कॉस t माइनस माइनस प्लस साइन ऑफ t। अगर मैं माइनस से मल्टीप्लाई करता हूँ अंदर, तो मुझे पूरा ये मिल जाएगा e cos ऑफ t माइनस साइन ऑफ t। ओके, और t का वैल्यू रिप्लेस करना है यहाँ पे, तो ये मेरा मिल जाएगा मुझे u, सो u इज नथिंग बट e रेज टू x, क्योंकि t के जगह पे मैंने e रेज टू x लिखा है, देखो सब्स्टिट्यूशन लेना है, सब्स्टिट्यूशन अगर लिया तो उसका वैल्यू रिप्लेस भी करना है बाद में, e raised to x into cos of e raised to x माइनस साइन ऑफ e raised to x, ये ऐसा मिल जाएगा। गॉट इट? तो अभी ये तो u मिल गया, v फाइंड करना है, v देखो v क्या है, v इज इंटीग्रेशन e raised to माइन, सॉरी, तो y1 लेना है, पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं, इंटू एक्स डिवाइडेड बाय w dx, तो सब वैल्यूज रिप्लेस करो। y1 क्या है आपका, देखो y1 मेरे पास है e raised to minus 2x, okay, so this is my y1, so this is equal to integration e raised to minus 2x, ये sin of e raised to x है पूरा, x डिवाइडेड बाय w आपका e raised to minus 3x into dx, तो ये sin of minus 3x फिर से ऊपर जाएगा, जैसे पिछले स्टेप में किया हमने, तो माइनस 2x e raised to minus 3x का वो प्लस 3x हो जाएगा, और साइन ऑफ, ये खाली मिलेगा मुझे साइन ऑफ e raised to x dx। ओके, तो अभी ये जो है दोनों का प्रोडक्ट अब जब मैं करता हूं तो मुझे मिलता है सिंपली इट इज e raised to x, बिकॉज e raised to 3x इंटू e raised to minus 2x, तो ऊपर जो इंडेक्स है दोनों का, उनका एडिशन हो जाएगा, माइनस 2x प्लस 3x इज नथिंग बट x, तो e के पावर में सिर्फ x आएगा, और यहाँ पे साइन ऑफ e raised to x मिलेगा। तो ये तो पिछले से भी सिंपल है, सिर्फ e raised to x की जगह पे t लो, क्यों ले रहा हूं मैं t, क्योंकि फंक्शन का डेरिवेटिव उधर है, अगर नहीं होगा तो डेरिवेटिव, तो सब्स्टिट्यूशन नहीं ले सकता मैं। तो सब्स्टिट्यूशन का बेसिक क्राइटेरिया क्या है, अगर आप सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो, जिसके जगह पे आप सब्स्टिट्यूशन ले रहे हो उसका डेरिवेटिव वो इंटीग्रेशन में एग्जिस्ट होना चाहिए, तो सेम दैट इज हियर, देखो e raised to x ऑलरेडी उसमें है, और उसका इंटीग्रेशन सॉरी उसका डेरिवेटिव ऑलरेडी e raised to x एग्जिस्ट है उधर, या देखो ये, उसके अलावा उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट है, देन वी कैन डायरेक्टली टेक द सब्स्टिट्यूशन फॉर दैट, तो इसका यूज करके डायरेक्ट इंटीग्रेशन जो आपका है वो सिंपल हो जाता है। तो e raised to x dx
मेरा हो जाएगा dt। तो ये जो पूरा पार्ट है अभी रेस टू एक्स इंटू डी एक्स, इसके जगह पे मैं क्या सब्स्टिट्यूट कर दूंगा, dt रिप्लेस कर दूंगा। तो फाइनली मुझे मिल जाएगा दिस इज इंटीग्रेशन साइन ई रेस टू एक्स नथिंग बट साइन ऑफ टी और ई रेस टू एक्स नथिंग बट dt। तो ये पूरा सिंपल हो गया अभी। और साइन टी का इंटीग्रेशन मुझे मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ टी और आप टी का वैल्यू रिप्लेस कर सकते हो यहाँ पे फिर ई रेस टू एक्स। तो मुझे v मिल जाएगा माइनस कॉस ऑफ ई रेस टू एक्स, दैट्स इट। तो u मिल गया, v मिल गया, yp मिल जाएगा आपको। सो माय yp इज नथिंग बट u y1 प्लस v y2। तो y1 y2 का वैल्यू डालना है, u और v भी डालना है। ओके, तो होप यू कैन अंडरस्टैंड दिस। आप ये कर सकते हो, ये फाइनल सॉल्यूशन फाइंड करो, yp मिल जाएगा और उसका एडिशन yc से ले डालो, दैट विल बी द फाइनल आंसर ऑफ दिस example. Okay. Any doubt in this example? This way we have some difficulty to find out the integration. Now it is very simple because of that roots that we have committed some mistakes. Okay. हेलो So सर। let us. Yes. सर हमारे पास वो इंटीग्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ढूंढने के लिए दो फॉर्मूले देखिए। तो Yes. Yes. We have good formula. तो हम मतलब डिसाइड कैसे करना है कि कौन सा अभी यूज कर सकते हैं? अभी आपने तो कैसे मैंने तुरंत डिसाइड कर लिया कि yes. Yes. हाँ, See तो हम कैसे that डिसाइड? I have mentioned here. So when we are going to use this formula, तो यहाँ पे u आपका अगर तो आपको u और v डिसाइड करना आता है लाइट रूल से, वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। Am I right? यस सर। ओके। तो अगर आपको u एंड v डिसाइड करना आता है तो आपको ये भी पता होगा कि अलजेब्राइक फंक्शन कैसा दिखता है और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और एक्सपोनेंशियल फंक्शन कैसे दिखता है। तो ये जो t जो है यहाँ पे ये अलजेब्राइक है, मीन्स अगर ऐसा हुआ इंटीग्रेशन x साइन x, am I right? तो यस x सर। साइन x में x आपका अलजेब्राइक हो गया और साइन x आपका ट्रिग्नोमेट्रिक हो गया। तो ये भी देखो अभी ऐसा अगर हुआ x इंटू ई रेस टू एक्स डी एक्स, तो इसमें x आपका क्या हो गया, अलजेब्राइक हो गया। नॉट नेसेसरी हर बार x होगा, x क्यूब भी हो सकता है। तो x क्यूब आपका अलजेब्राइक हो गया, ई रेस टू एक्स आपका एक्सपोनेंशियल हो गया। Am I right? ओके। अभी देखो यस सर। अगर ऐसा होता है तो एक फंक्शन मींस अगर u आपका अलजेब्राइक हुआ और v एक्सपोनेंशियल नहीं तो ट्रिग्नोमेट्रिक, दोनों में से कोई भी चलेगा। यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक है देखो अभी v, यहाँ पे एक्सपोनेंशियल है। u आपका स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, अलजेब्राइक होना चाहिए, और v स्ट्रिक्टली क्या होना चाहिए, आइदर इट इज एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक। ऐसा हाँ हुआ समझ गया तभी सर हम अभी। ये रिजल्ट यूज कर सकते। अदरवाइज अभी देखो ऐसा अगर मेरे पास इंटीग्रेशन x इंटू लॉग एक्स डी एक्स, तो इसके लिए मैं ये फॉर्मूला नहीं यूज कर सकता अभी। हाँ तो लॉग का ये u तो इंटीग्रेशन नहीं अलजेब्राइक मिलेगा है अपने को। पर v जो है आपका एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक नहीं है, v लॉगरिथमिक है। तो आपको वो बेसिक फॉर्मूला जो है वही यूज करना पड़ेगा। Understand? हाँ सर समझ गया। Okay, okay, fine. Now let us move forward for the second example that we have seen earlier. D square plus CD plus 2 equal to 0. The roots of these equations are -2 -1 as that of previous. पिछले एग्जाम्पल में भी यही रूट है। तो मेरा सिंपल जो yc है यहाँ पे मिल जाएगा e raised to -2x, c1 of course is there, it is c1 e raised to -2x plus c2 e raised to -x. ओके, तो ये माइनस यहाँ पे आ जाएगा, हमने कल प्लस लिया था, that's why that answer will not come. Okay, तो अगर मैं इसको कंपेयर करता हूँ y1 c1 y1 c2 y2 से, तो मुझे y1 मिल जाएगा। सो कंपेयर दिस विथ c1 y1 प्लस c2 y2, तो मुझे यहाँ पे y1 मिल जाएगा, माय y1 is e raised to -2x and y2 is simply e raised to -x। तो मैं फिर से यहाँ पे
W नहीं फाइंड करने वाला हूँ क्योंकि हमने फाइंड किया ऑलरेडी, वो यहाँ पे सेम किया हमने, y1 y2 y1 डैश y2 डैश, और W मुझे मिल गया प्लस, एक्चुअली माइनस इज नॉट देयर, प्लस e रेज़ टू माइनस 3x, so same I am written here. Okay, so W is e raised to minus 3x. This is my W. Okay, as that of previous, पिछले एग्जाम्पल में सेम यहाँ पे W मैंने लिया है, W इज इक्वल टू e raised to minus 3x. ओके, तो अभी y1 क्या होगा, yp लिखना है मुझे, yp इज इक्वल टू uy1 प्लस vy2. ओके, इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 बोलता हूँ, इसको 1 लेना है, जो yc मिला है. तो वेर u इज व्हाट, u का फॉर्मूला मेरे पास है इंटीग्रेशन y2 इंटू एक्स डिवाइडेड बाय w इंटू dx. तो y2 तो माइनस साइन बाहर लिया, y2 क्या है मेरा, e रेज़ टू माइनस एक्स है. देखो यहाँ पे y2 मिल गया मुझे e रेज़ टू माइनस एक्स. ओके, e रेज़ टू x का x क्या है आपका, इट इज e रेज़ टू x. देखो इट इज सिंपली व्हाट, e रेज़ टू x डिवाइडेड बाय w आपका क्या है, इट इज e रेज़ टू माइनस 3x जो हमने अभी फाइंड किया. तो e रेज़ टू माइनस 3x ऊपर चला जाएगा, माइनस e रेज़ टू माइनस एक्स, e रेज़ टू प्लस 3x हो जाएगा, e रेज़ टू x. देखो जब भी आप प्रैक्टिस करते हो एग्जाम्पल्स की, तो बहुत बार ऐसा होता है कि कुछ एग्जाम्पल्स में स्टेप रिपीट होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहा है अभी पिछले एग्जाम्पल में. अभी ये क्यों हो रहा है, क्योंकि जो फाई ऑफ डी है वो सेम है. अगर आप वैरायटी ऑफ एग्जाम्पल्स देखेंगे, टेक्स्ट बुक में देख लो, कहाँ पे भी देख लो, आंसर जो लिखते हो आपके, और क्वेश्चन पेपर में भी देख लो, कि बहुत बार जो फाई ऑफ डी होता है ना, वो कॉमनली यूज होता है. जैसे यहाँ पे डी स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2 का है, तो ये बहुत बार आ रहा है फाई ऑफ डी. डी स्क्वायर प्लस 1 भी बहुत बार आता है, डी स्क्वायर माइनस 1 भी बहुत बार आता है. तो ये आपको अच्छे से कॉन्सेंट्रेट करके ध्यान में रखना है. और अगर ये बहुत बार रिपीट हो रहे तो इसका डेफिनेटली आपको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आना ही आना चाहिए, क्योंकि आप मल्टीपल एग्जांपल्स का अगर प्रैक्टिस कर रहे हो सेम फाई ऑफ डी लेके, तो वो आपके ऑटोमेटिकली यू कैन रिमेम्बर एवरी टाइम अबाउट दैट, अगर आपने प्रैक्टिस किया है तो. अगर नहीं किया है तो कोई दिक्कत नहीं फिर. ओके, तो आपको वो ध्यान में नहीं आएगा. तो हर बार आपको नया मेथड अप्लाई करके, नया मीन्स कैलसी में जाके वो आपको रूट्स फाइंड करके फिर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन फाइंड करना पड़ेगा. अदरवाइज अभी मुझे पता था ये एग्जाम्पल मैंने, ये फाई ऑफ डी मैंने पिछले एग्जाम्पल में लिया है, सेम फाई ऑफ डी था, तो मैंने डायरेक्टली वहां से रूट उठा लिए. ओके, वैसा. तो अभी ये क्या हो जाएगा, अभी देखो ये स्टेप भी रिपीट हो रहा है. पिछले एग्जांपल में खाली साइन ऑफ e रेज़ टू x था, यहाँ पे e रेज़ टू x है, तो ये स्टेप रिपीट हो गया है मेरा. तो ये स्टेप क्या हो गया, e रेज़ टू माइनस एक्स, वहां पे भी ये स्टेप था, कहाँ पे था, देखो यहाँ पे ये वाला स्टेप था. तो ये आपको बहुत सारे एग्जाम्पल में होता है ऐसा, तो ये ध्यान में रखना है. तो ये e रेज़ टू प्लस 2x हो जाएगा, e रेज़ टू x इंटू dx. तो फिर से e रेज़ टू 2x आ गया वहां पे. तो ये ऐसा तो सॉल्व नहीं होगा एग्जाम्पल, सब्स्टिट्यूशन डेफिनेटली लेना पड़ेगा मुझे. तो हाउ कैन आई टेक द सब्स्टिट्यूशन फॉर दिस. तो सब्स्टिट्यूशन लेने के लिए देखो, फंक्शन चाहिए और उसका डेरिवेटिव भी चाहिए वहां पे इंटीग्रेशन में. तो फंक्शन अगर मैंने e रेज़ टू x सिलेक्ट किया, तो उसका डेरिवेटिव कहाँ पे है, तो वो यहाँ पे है. ये अगर स्प्लिट किया मैंने e रेज़ टू 2x को, अगर मैंने ऐसा लिखा e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, तो मुझे e रेज़ टू x मिल जाएगा. तो वैसे करना है मुझे, माइनस इंटीग्रेशन e रेज़ टू x इंटू e रेज़ टू x, जैसे पिछले एग्जाम्पल में भी मैंने किया था, e रेज़ टू x dx. तो अगर मैं e रेज़ टू x के जगह पे अभी t लेता हूँ सब्स्टिट्यूशन, जैसे मैंने बताया, तो उसका डेरिवेटिव e रेज़ टू dx वहां पे है. देखो ये पूरा टर्म जो है ये यहाँ पे प्रेजेंट है, और उसके जगह पे आप क्या ले सकते हैं, सॉरी फॉर दिस, यहाँ पे t ले सकते हैं हम. यू कैन टेक t हियर, राइट. तो e रेज़ टू x dx इज इक्वल टू t आप ले सकते हैं. तो ये जो e रेज़ टू x है,
तो इसके जगह पे अगर मैंने t लिया तो क्या मिलेगा देखो, माइनस e रेज टू x इज नथिंग बट t, और यहाँ पे क्या मिल जाएगा फिर से e रेज टू t, ये पूरा जो है ये e रेज टू x पावर ये t से रिप्लेस हो जाएगा, तो फाइनली मुझे मिल जाएगा e रेज टू t। देखो अभी सिंपल इंटीग्रेशन हो गया। फिर से आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स यूज कर सकते हो यहाँ पे। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कैसे यूज करना है, जो जब मैंने पहले वाला रिजल्ट बताया था u v1 माइनस u डैश v2 वाला, वही यूज करना है। दिस इज योर u और दिस इज v। देखो v अभी एक्सपोनेंशियल है, अगर v एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक हुआ तो आपको ये रिजल्ट यूज करना है, मैंने बताया। यहाँ पे देखो u v1 माइनस u डैश v2 प्लस u डबल डैश v3, कब यूज करना है, u तो अलजेब्राइक है ही यहाँ पे, और v एक्सपोनेंशियल और ट्रिग्नोमेट्रिक होना चाहिए। इस एग्जांपल में ट्रिग्नोमेट्रिक था, अभी इस एग्जांपल में देखो एक्सपोनेंशियल है, तो u एज इट इज लिखता हूँ मैं यहाँ पे, u मीन्स t एज इट इज, v का इंटीग्रेशन e रेज टू t आएगा, u का डेरिवेटिव आपका -1 हो जाएगा, माइनस ऑलरेडी इज देयर, और t का डेरिवेटिव 1 हो गया, और e रेज टू t मीन्स ये v1 है, उसका इंटीग्रेशन फिर से e रेज टू t आएगा, 1 का डेरिवेटिव आगे जाके 0 हो जाएगा, तो इसके बाद कोई टर्म नहीं आएगा। ओके, तो यहाँ पे मिल गया, यहाँ पे मुझे मिल गया देखो e रेज टू t अगर आप कॉमन लेते हो तो माइनस e रेज टू t मैंने कॉमन ले लिया, दोनों जगह पे है, ब्रैकेट में मुझे मिल जाएगा t माइनस, माइनस से भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हो, और अदरवाइज यू कैन कीप एज इट इज। तो मुझे यहाँ पे u मिल गया, e रेज टू t का वैल्यू रिप्लेस करो, e रेज टू x, e रेज टू x, e रेज टू x माइनस 1, दिस इज माई u, माइनस इज ऑफ कोर्स देयर आउटसाइड। ओके, तो v का जो फॉर्मूला है, तो v अभी क्या है देखो, v इज इक्वल टू इंटीग्रेशन y1 x डिवाइडेड बाय w dx। तो मेरा y1 जो है वो है e रेज टू माइनस टू एक्स, e रेज टू x डिवाइडेड बाय e रेज टू माइनस 3x dx। y1 देखो अच्छे से, हाँ y1 क्या लिया है मैंने, तो माई y1 इज e रेज टू माइनस टू एक्स, ये देखो y1 था मेरा e रेज टू माइनस टू एक्स, दैट आई हैव रिप्लेस। तो अभी ये e रेज टू माइनस 3x ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में, so what it is then, after that it become e raised to plus 3x, e raised to x dx. Okay, so e raised to minus 2x into e raised to 3x, it become e raised to x, plus हो जाएगा minus 2x plus 3x, ये मिल जाएगा मुझे x, और ये हो जाएगा आपका e raised to x। तो ये तो सिंपल हो जाएगा, फिर से यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन लेना है क्योंकि डेरिवेटिव एग्जिस्ट है e raised to x का। अगर मैंने e raised to x की जगह पे t लिया तो e raised to x dx वहां पे dt है। अब थोड़ा सा बेसिक देख लो इंटीग्रेशन का, ओके, तभी ये समझ में आएगा। देयर आर एक्चुअली 3 मेजर टाइप्स टू सॉल्व द इंटीग्रेशन। फर्स्ट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, सेकंड इज इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, एंड थर्ड वन इज इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन। वो भी हम देखने वाले हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन कैसा होता है वो नेक्स्ट मेथड में आएगा। तो ये जो e रेज टू एक्स dx है उसके जगह पे हमको dt लेना है, और ये तो e रेज टू t dt हो जाएगा, और ये तो सिंपल है, e रेज टू t आएगा इसका आंसर। ओके, और e रेज टू t मींस t का वैल्यू अगर मैंने रिप्लेस किया v इज e रेज टू x, तो ये मुझे v मिल गया। तो आपके पास u मिल गया, v मिल गया, y1 है y2 है, तो आप yp फाइंड कर सकते हो, yp में वैल्यू डाल दो और कंप्लीट सॉल्यूशन फाइंड करना है, दैट इज फॉर द होमवर्क, इतना ही आप कर सकते हो। ओके, सो u मिल गया, v मिल गया, y1 y2 है मेरे पास, उनका वैल्यू रिप्लेस करो, और फाइनली कंप्लीट सॉल्यूशन आपको मिलेगा yc प्लस yp। एनी डाउट, any doubt in this method? This is very simple method, just you have to concentrate on basic integrations, and basically the roots of the auxiliary equation। कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन जो है आपका, अगर वो गलत हो गया तो आपको ये u एंड v नहीं मिलेंगे, तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। तो just you have to focus on the complementary function। Okay, so if you have any doubt then just please ask, otherwise we just conclude this method here।
अभी हम जनरल मेथड के लिए जा रहे हैं। अगर आपको कुछ दिक्कत है इसमें और आपको आपके पास अगर कोई एग्जांपल होगा, सर आई हैवंट अंडरस्टैंड दिस एग्जांपल फॉर दिस मेथड, सो यू कैन जस्ट कमेंट, वी विल सॉल्व दैट एग्जांपल। तो अभी आगे जाना है हमको। तो आगे जाके देखो, अभी जनरल मेथड हमको देखना है। अभी जनरल मेथड में क्या है वो देखेंगे। जनरल मेथड में थोड़ा सा इंटीग्रेशन जो होता है वो थोड़ा हमको ध्यान देना है उसके ऊपर। जैसे या तो भी फिर भी बेसिक इंटीग्रेशन थे, तो वो इसमें थोड़ा सा डिफिकल्ट इंटीग्रेशन होगा। तो देखते हैं कैसा होगा। ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है एक्चुअली, बट इफ यू नो द बेसिक ऑफ इंटीग्रेशन देन यू कैन सॉल्व इट इज वेरी इजीली। ओके, तो खाली बेसिक रिजल्ट्स और जो बेसिक थ्योरम्स है, जैसे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का थ्योरम बताया मैंने, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शन क्या होता है, इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन क्या होता है, अगर ये चीजें आपको पता है तो यू कैन डेफिनेटली सॉल्व दिस। ओके, तो जनरल मेथड अभी इसका भी थोड़ा सा लिमिटेशन है, बट हम क्यूबिक इक्वेशन मींस ऑर्डर 3 का इक्वेशन सॉल्व कर सकते हैं, बट आपके सिलेबस में फिलहाल तो नहीं, तो इसका टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो हमने एग्जांपल्स देखे एमवीपी में, तो कुछ एग्जांपल्स में भी यहाँ पे हम सॉल्व करने वाले हैं जनरल मेथड से। ओके, सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट कंसीडर nth ऑर्डर एलडी हम कंसीडर करते हैं, और उसका जनरल फॉर्म है इन द फॉर्म ऑफ ऑपरेटर डी, इट इज phi of d into y is equal to fx. Am I right? This is my nth order linear differential equation with constant coefficient. Okay, तो यहाँ पे देखो yp जो है मेरा, तो ये phi of d के रूट्स अगर मुझे मेरे पास है, लेट phi of d is equal to d minus m1 मीन्स अभी उसके पहले मैं थोड़ा सा दो केसेस आपको बता देता हूँ। केस वन, ओके, पर्टिकुलरली फॉर पर्टिकुलर इंटीग्रल ओनली, पर्टिकुलर इंटीग्रल ही हम देखने वाले हैं, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन तो हमको पता है कैसे फाइंड करना है। तो केस वन में क्या होता है, देखो, अगर आपका डिनोमिनेटर में रूट ऐसा हुआ 1/d-m, तो ये अगर आपको ऑपरेट करना है एफ एक्स पे तो क्या होगा, क्योंकि फाई ऑफ डी के दो रूट मिलने वाले हैं। अगर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ तो ऑक्सिलरी इक्वेशन अगर 2 डिग्री का हुआ, क्वाड्रेटिक हुआ, तो आपको दो रूट्स मिलेंगे यहाँ पे। तो उसमें से अगर एक रूट d-m हुआ सपोज, तो ये एफ एक्स पे कैसे ऑपरेट होगा देखो। तो इसका इसका पूरा आंसर आपका आएगा। तो अगर d-m है तो e रेस टू एम एक्स जो लेना है आपको, वो m e का पावर बाहर प्लस होगा और अंदर माइनस होगा इंटू एफ एक्स डी एक्स। डू यू अंडरस्टैंड मैंने क्या बताया? अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो ये माइनस जो e का पावर है वो अंदर होगा, e रेस टू माइनस एक्स, और बाहर e का पावर प्लस होगा, e रेस टू प्लस e रेस टू एम एक्स और e रेस टू माइनस एम एक्स। ये दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है बहुत बार बच्चों का। तो दूसरा केस में यहाँ पे बताने वाला हूँ, सेम केस है, थोड़ा थोड़ा चेंज है इसमें। सो केस नंबर 2, अब अगर आपका रूट प्लस होता है तो yp क्या होगा, अगर ये d प्लस m हुआ और अगर आपको ये एफ एक्स पे ऑपरेट करना है तो क्या होगा, अभी माइनस बाहर होगा e रेस टू माइनस एम एक्स, ये प्लस अंदर होगा e रेस टू एम एक्स इंटू एफ एक्स डी एक्स, ऐसा। गॉट इट? तो e रेस टू माइनस एम एक्स, तो दोनों में आप कंपैरिजन कर सकते हो। अगर यहाँ पे माइनस हुआ तो माइनस अंदर है, और प्लस हुआ तो प्लस अंदर है और माइनस बाहर है। तो ये दोनों का डिफरेंस आपको ध्यान में रखना है, और यही हम दोनों यहाँ पे यूज करने वाले हैं। ओके, और सिंपली अगर 1/d हुआ खाली, तो 1/d का तो आपको इंटीग्रेशन लेना है। तो मैंने वैसे तो मैंने बताया है वो पहले, कुछ एग्जाम्पल्स में भी आया। केस 3 लिख लेते हैं हम,
वैसे उसकी कुछ जरूरत नहीं है, फिर भी अगर सिंपली डी हुआ, बहुत बार होता है ऐसा भी, तो आपको क्या लेना है, इसका खाली इंटीग्रेशन लेना है एफ एक्स डी एक्स, क्योंकि ई रेस टू जीरो आएगा, डी माइनस जीरो है ना, डी मीन्स वॉट, डी माइनस जीरो, तो m का वैल्यू आपका जीरो है, तो ई रेस टू एम, ई रेस टू जीरो मीन्स वन हो जाएगा, यहाँ पे भी ई रेस टू जीरो वन हो जाएगा, तो डायरेक्टली सिर्फ आपको एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना है, दैट्स इट। दीज आर द केसेस that we are going to use while finding the particular integral for the given LD with the help of general method. So अगर देखो अभी ये तीनों केसेस हमारे पास है, तो अगर ऐसा कुछ तो भी होता है, सो केस 4 अगर मैंने लिया, तो उन ऊपर जो तीन केसेस हमने डिस्कस किए उनका एप्लीकेशन सिर्फ मैं यहाँ पे करने वाला हूँ। yp इज इक्वल टू इंटीग्रेशन, सॉरी 1/, अगर एक रूट आपका प्लस है दूसरा माइनस है कि, और अदरवाइज अगर दोनों माइनस है तो क्या, अगर सपोज d माइनस m1 है यहाँ पे और d माइनस m2 दो अलग रूट्स है और ये मुझे fx पे ऑपरेट करने हैं, तो एक साथ दोनों नहीं होंगे, एक के बाद एक रूट अप्लाई करना है आप। तो पहले तो मैं क्या करता हूँ, दिस d माइनस m1 कीप एज इट इज, और ये d माइनस m2 fx पे ऑपरेट करना है। इसके लिए क्या यूज करना है आपको, ये सेकेंड केस, सॉरी फर्स्ट केस यूज करना है, d माइनस m वाला, तो इसका आंसर जो आएगा उसको पूरा fx लेना है और उसके ऊपर फिर d माइनस m1 आपको ऑपरेट करना है। डू यू अंडरस्टैंड? ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो, और अदरवाइज, और यू कैन टेक ऑल्सो पार्शियल फ्रैक्शन। सो yp इज इक्वल टू, अगर आपके पास ऐसा है d माइनस m1 इंटू d माइनस m2 fx, तो आप सिंपली इसका पार्शियल फ्रैक्शन ले सकते हो, तो मैं वो बताऊंगा पार्शियल फ्रैक्शन कैसे लेना। और अगर आप ये ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, ये अगर सॉल्व करते हो, देखो अभी 1/d माइनस m1 माइनस 1/d माइनस m2, अगर ये सॉल्व करते हो तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, देखो ऊपर तो d माइनस m2 आएगा, माइनस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। फ्रैक्शन कैसे सॉल्व करते हो आपको पता है, एलसीएम लेना है और एलसीएम लेने के लिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करना है। d माइनस m2 यहाँ पे माइनस d माइनस m1 आ जाएगा और डिवाइडेड बाय ये दोनों का प्रोडक्ट d माइनस m1 इंटू डी माइनस m2, ये तो आ गया, तो ये माइनस d प्लस d कैंसिल हो गया मेरा, और माइनस माइनस बिकम प्लस, माइनस m2, तो इसका आंसर मेरा आ गया m1 माइनस m2 divided by this d minus m1 into d minus m2, तो ये न्यूमरेटर मेरा एक्सेस है यहाँ पे, तो मैं क्या करूंगा, उसने डिवाइड एंड मल्टीप्लाई कर लूंगा, तो इसका जो मेरा आंसर आ जाएगा तो वो क्या आएगा, देखो अभी अगर इसका आंसर फाइंड करता हूँ तो मुझे मिल जाएगा 1/m1 minus m2. There are certain methods to find out the partial fraction, okay? So while solving the examples, I will explain you about that. Bracket में 1/d minus m1 minus 1/d minus m2 ऐसा आ जाएगा। सिंपल एक एग्जांपल मैं बताता हूँ, अगर आपके पास ऐसा है, देखो m1 m2 के पर्टिकुलर वैल्यूज लेता हूँ मैं भी, तो आपके पास अगर d माइनस 2 इंटू डी माइनस 1 है, तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन क्या होगा, अभी m1 तो 2 है, m1 1 है, ओके, तो 1/2 माइनस 1 लिखना है इन ब्रैकेट, तो ये पहले लिखना है d माइनस 2 माइनस 1/d माइनस 1, हो गया, और ये इजीली आप सॉल्व कर सकते हो। फिर अगर ये सॉल्व किया तो आपको सेम ही मिलेगा, ओके। तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट द पार्शियल फ्रैक्शन। और अगर आपने एक बेसिक मेथड अगर देखा पार्शियल फ्रैक्शन का, इसकी कुछ जरूरत नहीं है एक्चुअली यहाँ पे, तो मैं वो भी बता देता हूँ, होप यू हैव स्टडीड दैट एज वेल।
सो ए अपॉन फर्स्ट फैक्टर लेना है आपको प्लस बी अपॉन सेकेंड फैक्टर लेना है आपको। ये आपने देखा है 11th स्टैंडर्ड में भी है, बेसिक स्टैंडर्ड में भी है, डिप्लोमा में भी देखा है आपने और डिग्री में भी देखा है। बहुत जगह पे ये पार्शियल फ्रैक्शन का कंसेप्ट आता है। ओके, तो ए एंड बी के वैल्यूज फाइंड करने हैं और वो सब्स्टिट्यूट करने हैं, आपको इस टर्म का पार्शियल फ्रैक्शन मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे अभी ये एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ क्योंकि आपको ये पता है। अगर नहीं पता होगा तो आप बेसिक स्टैंडर्ड में से ये रिवाइज करो, क्योंकि ये यहाँ पे एक्सप्लेन जितना आपको चाहिए था उतना मैंने किया है। होप यू हैव अंडरस्टैंड दैट। ओके, तो अभी अगर नहीं ध्यान में होता है तो d माइनस M1 d माइनस M2 चाहिए ना, उसमें से प्लस नहीं चाहिए कोई। तो M1 M2 का सब्सट्रैक्शन लेना है डिनोमिनेटर में बाहर और उन दोनों का सब्सट्रैक्शन लेना है वो रूट्स का। तो ये खाली मिल जाएगा आपको। दिस इज योर फोर्थ केस एक्चुअली। और आप यहाँ पे fx ऑपरेट कर सकते हैं फिर इजीली। तो fx से दोनों को मल्टीप्लाई में जाएगा तो ये तो बाहर आ जाएगा आपका 1/m1 माइनस M2 एज इट इज है। ओके, तो ये d माइनस M1 fx ये ऐसा हो जाएगा माइनस 1/d माइनस M2 इंटू fx ये ऐसा हो जाएगा। fx दोनों को मल्टीप्लाई में जाएगा। और अभी इसके लिए आपको फर्स्ट केस यूज करना है। ओके, तो फर्स्ट केस क्या बोलता है, अगर आपके पास d माइनस m वाला फैक्टर हो तो माइनस साइन आपको अंदर लेना है। m1x इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस m1x fx dx। ये तो हो गया पहले का आंसर। और दूसरे का आंसर क्या आ जाएगा आपका, माइनस 1/d, सॉरी नॉट लाइक दैट। तो यहाँ पे भी प्लस साइन अंदर ही प्लस बाहर आएगा, m1 m2x इंटीग्रेशन e रेज़ टू माइनस m2x fx इंटू dx। तो इसको डिटेल में हम स्टडी करेंगे जब हम एग्जाम्पल्स देखेंगे। ओके, तो अगर इसमें कुछ डाउट है आपको तो आप अभी पूछ सकते हो, क्योंकि ये सारे केसेस हम आगे जाके यूज करने वाले हैं। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड दिस। तो अभी एग्जाम्पल्स देखते हैं और एग्जाम्पल्स में से आपको समझ में आएगा कैसे हम एक्चुअली जनरल मेथड यूज करने वाले हैं। देखो अभी इसका सॉल्यूशन रिसेंटली हमने फाइंड किया MVP से। ओके, मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, आप कौन सा भी मेथड यूज करो आपको सॉल्यूशन सेम ही मिलने वाला है, सॉल्यूशन चेंज नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पे अभी ये ऑक्सिलरी इक्वेशन मैंने लिख लिया। अभी अगर मैं इसको ऑपरेटर डी में कन्वर्ट करता हूँ तो क्या मिलेगा, अगर ऑपरेटर डी में मैंने कन्वर्ट किया तो सिंपली मुझे मिल जाएगा d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू वाई, दिस इज इक्वल टू e रेज़ टू x, ऐसा मिल जाएगा। Am I right? तो ऑक्सिलरी इक्वेशन मेरा यहाँ पे auxiliary equation is d² plus 3d plus 2 equal to 0। तो इसके मेरे रूट्स मुझे पता है, जैसे मैंने फाइंड किए, इट इज -2 -1। तो मेरा yc जो है मिल जाएगा सिंपली c1 e रेज़ टू माइनस 2x प्लस c2 e रेज़ टू माइनस x, लाइक दिस। तो ये मेरा yc मिल जाएगा। तो इस यहाँ पे y1 y2 आपको लिखने नहीं है अभी, ये थोड़ा अलग केस है। ओके, तो इसका जो एक्चुअली आपका एक्सपांशन है, देखो d प्लस 2 d प्लस 1 दिस इज इक्वल टू 0। ऐसा हमको ये चाहिए, ये डिनोमिनेटर में लिखना है हमको। ओके, फाइव ऑफ d के जगह पे। तो देखो अभी yp क्या मिलेगा मुझे, सो yp इज इक्वल टू 1/5 ऑफ d, मेरा क्या है d² प्लस 3d प्लस 2 इंटू e रेज़ टू x। तो 1 ये मेरा है d प्लस 2 d प्लस 1 e रेज़ टू x। तो ऐसा मिल जाएगा। तो दोनों प्लस है यहाँ पे, तो एक एक हम क्या करते हैं, अप्लाई करते हैं। पहले d प्लस 1 अप्लाई करेंगे
अगर मैंने पहले डी प्लस, आप पार्शियल फ्रैक्शन भी ले सकते हो इसका, पर यहाँ पे प्लस है, दोनों माइनस नहीं है, तो प्लस का भी पार्शियल फ्रैक्शन है हमारे पास, वो भी बताऊंगा मैं। पर उसके पहले हम देखते हैं कि डायरेक्टली कैसे फाइंड करते हैं। 1/d+2 एज इट इज, ये ऐसा ही रहेगा। और पहले तो मैं d+1 पे ऑपरेट करता हूँ, e⁻x। और एक चीज यहाँ पे जो आपको ध्यान में रखनी है, देखो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, some student can take d+2 first and then d+1 that we have taken right now, and some student can take d+1 first and then d+2। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आपका फाइनल आंसर आपको सेम ही मिलेगा। ओके, तो अगर आप पहले d+2 ऑपरेट करते हो, d+1 बाहर लेते हो, तो उसमें भी कुछ गलत नहीं है। ओके, सो देखो मैं सब पॉसिबिलिटीज आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, so that you can use that also and check whether the answer is same as that we have now। okay, तो अभी d+2 तो ऐसे एज इट इज आ जाएगा। ब्रैकेट में देखो, अभी प्लस है यहाँ पे d+1, तो केस क्या बोलता है, अगर आपका √d+m होता है fx पे ऑपरेट करने के जब आप करते हो तो क्या होता है, ये माइनस बाहर होता है और प्लस अंदर होता है, fx dx। तो ये हमने देखा अभी, तो +2 है ना, सॉरी +1 है, तो बाहर क्या होगा आपका e⁻x होगा, और अंदर क्या होगा आपका e⁻x dx, लाइक दिस। मेरे, डू यू अंडरस्टैंड दिस? प्लस मैंने अंदर लिया, माइनस माइनस बाहर लिया। तो देखो अभी e⁻x ये जो है इंटीग्रेशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, ये इंटीग्रेशन के बाहर है, ये ध्यान में रखो। खाली हमको इस टर्म का इंटीग्रेशन फाइंड करना है। ओके, तो अगर मैंने e⁻x की जगह पे t लिया, तो मुझे ये सब्स्टिट्यूशन e⁻x dx मिल जाएगा dt। Am I right? क्योंकि देखो अभी e⁻x जो है, इसका ये इस फंक्शन का डेरिवेटिव यहाँ पे एग्जिस्ट है। तो जैसे मैंने पिछले एग्जांपल में देखो MVP का सेम इंटीग्रेशन आया था, तो आप देख सकते हो। लेट मी शो यू where it is actually, where it is। See here, देखो ये सेम इंटीग्रेशन आया था, e⁻x, तो यहाँ पे e⁻x की जगह पर मैंने t लिया था, तो सेम यहाँ पे यही हमको करना है। ओके, तो e⁻x की जगह पर मैंने t ले लिया, और इंटीग्रेशन सब्स्टिट्यूशन अगर लेता हूँ तो ये बहुत सिंपल हो जाता है फिर। तो वहाँ पे d-2 तो एज इट इज आएगा, ब्रैकेट में देखो e⁻x भी एज इट इज है, इंटीग्रेशन में e⁻t आ जाएगा सिर्फ dt। तो इसका इंटीग्रेशन तो हो जाएगा मेरा 1/d+2 एज इट इज, इन ब्रैकेट e⁻x एज इट इज, और इसका इंटीग्रेशन e⁻t मिलेगा, और बाद में मैं रिप्लेस कर दूंगा उसको 1/d+2, देन इट इज e⁻x, t जो है t के जगह पे मैंने e⁻x रिप्लेस कर दिया, ये जो t है वहां पे रिप्लेसमेंट कर दिया। अभी ये पूरा फंक्शन हो गया आपका, अभी ये नया फंक्शन है हमारे पास fx, और ये d+2 उस पे ऑपरेट करना है अभी पूरा। तो what I get here simply it is 1/d+2। तो सॉरी, फिर से वही रूल एक बार, d+m वाला, तो माइनस बाहर आएगा, e⁻²x बाहर, इंटीग्रेशन में प्लस हो जाएगा e⁻²x, और फिर से ये ऑलरेडी पूरा फंक्शन जो है e⁻x e⁻x ऐसा मिल जाएगा। तो मुझे e⁻² तो एज इट इज रखना है बाहर। ओके, इंटीग्रेशन में देखो अभी e⁻² इंटू e⁻x क्या हो जाएगा मेरा, e⁻+x हो जाएगा e⁻x। फिर से वही इंटीग्रेशन मिल गया मुझे, देखो सेम इंटीग्रेशन दैट आई हैव, और उसका आंसर भी मुझे पता है e⁻t है उसका आंसर।
तो मैं सब्स्टिट्यूशन लेके डायरेक्टली आंसर लिख लेता हूँ क्योंकि मुझे पता है। ओके, तो अगर मैंने सब्स्टिट्यूशन लिया e raised to x इज इक्वल टू t, तो इसका डेरिवेटिव e raised to x dx मिल जाएगा मुझे dt। तो ये पूरा जो है e raised to x dx, इसके जगह पे मुझे मिल जाएगा dt। दिस इज e raised to minus 2x इंटीग्रेशन e raised to t dt मिल जाएगा। ओके, और e raised to minus 2x e raised to t का इंटीग्रेशन e raised to t और t का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, तो ये मेरा मिल गया पूरा yp। दिस इज माय yp। ओके, so yp is equal to e raised to minus 2x e raised to x। okay, and in this way we can have yp। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स है देखो, ये बहुत सिंपल है। अगर जनरल मेथड भी आप यूज करते हो तो मेरे पास yp है, कंप्लीट सॉल्यूशन में लिख लेता हूँ अभी। तो yp y is equal to yc plus yp, so yc is c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus x plus e raised to minus 2x e raised to x। तो आप बोलेंगे सर ये और हमारा जो फाइंड किया है वो करेक्ट है क्या? यस, एब्सोल्युटली करेक्ट। सो खाली आपको yp जो है वो ठीक से कैलकुलेट करना है। over there we have u। ओके, तो माइनस e raised to x ये मिला, v e raised to x मिला, y1 y2 वहाँ पे डालने हैं और कैलकुलेट करना है, तो आपको डेफिनेटली वो सेम ही मिलेगा। देखते हैं करके, अगर मिलता है तो ठीक, नहीं मिलता है तो कुछ तो भी फिर से हमसे गलत हो गया होगा। तो यहाँ पे मैं u रिप्लेस करता हूँ। वी आर जस्ट चेकिंग वेदर द आंसर्स बाय डिफरेंट मेथड्स आर करेक्ट और नॉट। दिस इज द मोटो ऑफ दिस, अदरवाइज वी आर नॉट हियर एक्चुअली कंपेयरिंग द आंसर्स। ओके, तो हमको देखना है कि आंसर सेम है क्या, तो डेफिनेटली वो सेम होगा। u आपका है यहाँ पे, y1 जो है ये e टू माइनस 2x है, u मुझे मिल गया माइनस e टू x, तो e टू माइनस 2x, सॉरी ये y1, u है मेरा e टू x इंटू e टू x माइनस 1। ओके, then I think it is minus, yes it is माइनस में बाहर लेता हूँ, और प्लस v जो है आपका e टू x है, और अंदर आपका y1 जो है e टू आई थिंक माइनस x। तो अगर आप ये पूरा सॉल्व करते हो तो आपको डेफिनेटली मिल जाएगा। तो e टू x कॉमन लेना है, e टू माइनस 2x। ओके, तो यहाँ पे ये मिल गया मुझे e टू x, प्रोडक्ट ले रहा हूँ, माइनस e टू माइनस 2x, देन ये हो जाएगा प्लस e टू माइनस x। ये सॉल्व करना है एक्चुअली। यहाँ पे देखो, अगर मैं e टू माइनस 2x इंटू e टू x कॉमन लेता हूँ तो डायरेक्टली भी मुझे ये मिल सकता है। ओके, सो एंड दैट इज सेम एज दिस, दिस इज e टू माइनस 2x e टू x। ओके, तो सिर्फ मुझे यहाँ पे पूरा ये ऐसा, इसके अलावा e टू अगर मैंने पूरा ये कॉमन लिया e टू माइनस 2x इंटू e टू x, तो यहाँ पे तो e टू माइनस 2x नहीं है, तो e टू माइनस 2x ने यहाँ पे डिवाइड एंड मल्टीप्लाई करना है, अभी हम वो ले सकते हैं कॉमन बाहर। और ये अगर ऊपर लिया मैंने e टू माइनस एक्स इंटू e टू x हो जाएगा, e टू x मिल जाएगा। ओके, तो अगर ये ब्रैकेट आप कैलकुलेट करते हो तो आपको 1 मिल जाएगा ये पूरा अंदर का। ओके, और फाइनली योर yp is like this, e टू माइनस 2x into e टू x। ओके, so same
you just do for the other examples also. Okay, तो ये हमारा सेकेंड एग्जाम्पल है, ये भी हमने एग्जाम्पल MVP से सॉल्व किया है, तो यहाँ पे भी मुझे YP सेम मिल जाएगा। तो मेरा ऑक्सिलरी इक्वेशन यहाँ पे है d स्क्वायर प्लस 3d प्लस 2, दिस इज इक्वल टू 0। ओके, और आपके रूट्स मिल जाएंगे -2 -1, और मुझे यहाँ पे YP मिल जाएगा सेम C1 e raised to -2x प्लस C2 e raised to -x। ओके, और ये मिलने के बाद अगर मैं YP के लिए जाता हूँ तो YP मुझे मिलेगा 1/d प्लस 2 d प्लस 1, ये 5 के जगह पे लिया मैंने, इंटू साइन ऑफ e raised to x। तो पहले तो ये d प्लस 2 d प्लस 1 में से एक ऑपरेट करना है और उसके बाद दूसरा ऑपरेट करना है। तो 1/d प्लस 2 तो एज इट इज मिल जाएगा, ब्रैकेट में वहां पे d प्लस 1 लिखना है पहले, साइन ऑफ e raised to x इज दैट, and now we can operate d plus 1 first, d plus 2 as it is. One more thing that is I'm now want to explain you that, तो d plus 1 पहले ऑपरेट करने का फायदा भी है, देखो हमारे पास, क्योंकि e raised to x का पावर जो है प्लस 1 है, e raised to x मीन्स e raised to 2x नहीं है, e raised to plus x है, ओनली सिंगल x। तो d plus 1 अगर मैंने लिया तो अंदर भी मुझे e raised to x ही मिलेगा, और सब्स्टिट्यूशन में इजीली ले सकता हूँ। अगर मैं d plus 2 पहले लेता हूँ तो मुझे e raised to 2x मिलेगा अंदर इंटीग्रेशन में पहले, साइन e raised to x, तो मुझे ये स्प्लिट करना पड़ेगा, फिर आंसर डेफिनेटली आएगा, तो एक दो स्टेप बढ़ जाएंगे, तो मैं वो जस्ट अवॉइड कर रहा हूँ। यू कैन यूज दैट, नो प्रॉब्लम, हम यूज कर सकते हैं, but to avoid this that I have done, e raised to minus x outside, e raised to plus x is there, sin of e raised to x dx ऐसा मिलेगा। तो आपको e raised to x के जगह पे सब्स्टिट्यूशन लेना है, क्योंकि डेरिवेटिव वहां पे एग्जिस्ट है। तो e raised to x के जगह पे अगर मैं t लेता हूँ तो उसका डेरिवेटिव मिल जाएगा मुझे dt, तो ये सिंपल हो जाएगा फिर इंटीग्रेशन। ये जो पूरा टर्म है इसके जगह पे मैं t रिप्लेस कर दूंगा अभी, राइट। So simply this integral become 1/d plus 2 as it is, inside bracket e raised to minus x is there, then integration sin of t dt ऐसा हो जाएगा। तो sin t का डेरिवेटिव तो माइनस cos t हो जाता है, तो 1/d plus 2 as it is, e raised to minus x is also as it is minus cos of t, और t का वैल्यू रिप्लेस करना है, तो 1/d plus 2 as it is, ये पूरा हो जाएगा माइनस e raised to minus x cos of e raised to x ऐसा मिल जाएगा। ओके, और अभी अभी देखो इंटीग्रेशन हमको अभी ये d प्लस 2 ऑपरेट करना है। d प्लस 2 जब ऑपरेट करते हो तो माइनस तो बाहर लिया, e raised to minus 2x बाहर होगा, इंटीग्रेशन में प्लस 2x होगा, e raised to minus 2x ऑलरेडी है, ये पूरा fx है हमारा अभी। ओके, और cos of e raised to x dx, तो e raised to 2x into e raised to minus x, ये क्या हो जाएगा आपका, माइनस 2x, इंटीग्रेशन में e raised to x हो जाएगा, cos of e raised to x। तो फिर से सब्स्टिट्यूशन लेना है, सब्स्टिट्यूशन e raised to x के लिए लेना है, और उसका डेरिवेटिव भी मिल जाएगा मुझे dt। तो अगेन यू कैन रिप्लेस दैट, सो हाउ सिंपल इट इज। ओके, तो माइनस e raised to minus 2x हो जाएगा, इंटीग्रेशन cos of t मिल जाएगा dt, तो माइनस e raised to minus 2x एज इट इज, और cos का इंटीग्रेशन प्लस साइन ऑफ t, फाइनली गेट माइनस e raised to minus 2x साइन ऑफ e raised to x, दैट्स इट, दिस इज योर yp, और आप कंप्लीट सॉल्यूशन ले सकते हैं। एंड माय कंप्लीट सॉल्यूशन इज लाइक दिस, y is equal to yc plus yp,
जो मेरा yc था c1 e raised to minus 2x plus c2 e raised to minus x, and now I have yp minus e raised to minus 2x into sine of e raised to x. Okay, so any doubt? So in this way we can have this method, actually general method. So we will discuss some more examples in tomorrow's lecture. Okay, and just try to solve some examples based on this method also. Okay, and practice them as well so that you can understand it very well. So this is one more example. So try to solve this. Tomorrow we will discuss these examples. Okay, तो ये एग्जाम्पल सॉल्व करके देखो अभी, अगर आपको कुछ दिक्कत आती है इसमें तो हम कल इसके बारे में बात करेंगे, और हम कल एक नया मेथड स्टार्ट करेंगे, एंड इट इज व्हाट, लीजेंड्री और Cauchy simultaneous linear equation. Okay, so we just think about that and we also solve that examples. Okay, so that we just stop here.